Here it is. And the new line is like this. Let us say this is the line. Okay. Now you can see the line is making angle greater than 90 degree. Here you can see this much angle will be made by the line with the x-axis. Alright. Then in that case, what can I do? I will write equation. Let us say dy by dx. Here slope is negative. That means dy by dx is negative for this line. Okay. Or you may consider there are only 4 types of curves. I will explain in next 2-3 minutes. Just now you keep in mind, for finding the shear force diagram or the slope of shear force diagram, you need to have you need to know the dy by dx value. If on the y-axis you are going to put shear force, that is say shear force Vx, we will denote by Vx. Then what will be the dy by dx value? D dx of Vx, right? Then the value of d dx of Vx, if it is positive or negative, that will denote the slope of shear force diagram, right? Or you know that shear force is nothing but the instead I will explain with an example. Look at the screen. I will clear all these things. We have discussed what if the dy by dx value is positive or negative, or in case if dy by dx value is 0, what it indicates? That indicates it is a horizontal straight line. Okay, neither like this, not like this. It will be a horizontal straight line like this. So now in our problem, we will put on y-axis a shear force value for finding the shear force diagram. And in previous our consider example, this was the case. Here was a force. We need not to find reactions at this point. Because we are considering a x-axis section at near the left end. So we will skip this first step and directly write the second step, that is the shear force equation. Okay, then what will be the shear force equation? Let us say F. You know that this is the P acting in negative direction, so we'll put minus sign and P value as it is. Is there any another force from here to here? No. So till the last end, shear force will be only minus P. Alright. So how will be our shear force diagram? I will write on next slide. F is, you know that shear force equal to minus P. This is our given diagram. This is P, this is fixed support. Now we will draw a dotted line from the two ends like this.
I will use another color. Okay, let us say this is x-axis and this is y-axis. Okay, on the y-axis what we will put? We will put shear force. Alright. I will use another color. Now my value of P is negative, so I will draw in this direction. Okay, this is positive Vx. Okay. Let me Vx. Okay, Vx value, and this is minus Vx. Okay, so this is negative side. I will draw a line like this up to here. Let us say minus Vx is equal to minus P. This I can also write shear force equal to Vx. And as there is no any other force from this pre-end to up to this fixed end, so simply we will connect this line here, and here the reaction, because of the, let us say, reaction force Ra or Rb, that will nullify and it will become 0. Okay, now you have got the shear force diagram. Now our challenge is to get bending moment diagram. Now what will I do? Again, use this Cartesian coordinate system, and instead of Vx, what will I write here? Mx. What is happening? Let us say this is Mx. Okay. On this positive y, and here it will be negative. This is again x-axis. Now you know that our shear force diagram is like that, shown in above slide or above this bending moment Cartesian coordinate system. I will complete this. Here it is actually a complete box. Now you know that Vx is negative and Mx is nothing but the slope of Mx. Here on the y-axis there is Mx. Actually this is a y-axis. Okay. Then what will be dy by dx for bending moment diagram? It will be ddx of mx, right? ddx of mx. And you know that ddx of mx, that means moment, you know that moment is nothing but force into distance, right?
this moment here, what is our force? Force is shear force, Vx, isn't it? Then derivative of shear force into x, what will I get? D dx of shear force into x, I will get it equal to Vx. यहाँ तक आपको सब क्लियर होगा. दैट मीन्स हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि d dx of mx is nothing but Vx. So slope of mx, slope of this bending moment diagram will be the value of Vx, and you know that it is negative. That means it will be negative in this case only. यहाँ पे सिर्फ negative होगा. So हमारा जो slope है इसका ये भी आएगा negative, right? एक बात तो पता चल गई. अब हमें ये पता करना है कि apart from negative slope, what will be the rate of change of shear force? तो किस लिए फाइंड करना है rate of change of shear force? तो इसके पीछे रीजन है whether our curve will be like this or like this or something any other form, parabola, shape of parabola. So that I will write equation of parabola. जैसे हमने y is equal to mx plus c लाइन का इक्वेशन लिखा था, वैसे ही अब मैं पैराबोला का इक्वेशन लिख कर आपको बताता हूँ. आपको पता है mx की वैल्यू तो हमें सेकंड स्टेप से निकाल लेंगे. उससे पहले मैं बताता हूँ कि कोई भी जो कर्व होता है एक्चुअली इट इज मेड ऑफ ए सर्कल लाइक दिस. वेदर इट इज ए पैराबोला, आपने ये ऐसे पैराबोला देखा होगा और स्टडी किए होंगे, ऐसा और ऐसा, और इट मे बी फ्रॉम दिस ईयर it is coinciding here, the apex is coinciding at the point O, that is 0 of a Cartesian coordinate system, or in this case it may be like this. If A and B equal to 0, here let us say this is the apex A comma B, right? यहाँ पे 0, यहाँ पे फिर से अपेक्स A कॉमा B सिमिलरली. तो यहाँ पे अगर मैंने जैसे बताया कि एक टेंजेंट मैं अगर यहाँ निकालता हूँ, देन व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट? इट विल बी पॉजिटिव. ये हमने देख लिया. यहाँ पे भी सेम पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे जो है नेगेटिव रहेगा. ऑलराइट, अब मैं आपको उसका सिग्निफिकेंस दिखाता हूँ. स्लोप पॉजिटिव है मतलब dy बाय dx पॉजिटिव है, राइट? dy बाय dx, सॉरी, यहाँ पे भी dy बाय dx पॉजिटिव. पहले हम ये देख लेते हैं ये किस लिए कर रहे हैं अपन? फाइंडिंग द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. ये यहाँ पे भी है पॉजिटिव. नाउ we are discussing about the shape of this curve or the whether it is parabolic or straight line. Straight line के equation से y is equal to mx plus c. But what if this shape is like circular or parabolic shape? तो हम उसके लिए डिस्कस करेंगे पैराबोला का इक्वेशन. You know the equation of parabola. Here I am writing. You may have seen like this: x minus a bracket square and plus minus a plus minus b, or even I can write like this: plus minus y minus b bracket square. This is the equation of parabola.
इफ वी विल सॉल्व इट तो क्या मिलेगा हमें इन टर्म्स ऑफ 4 either this or this, both are the equations of parabola. Okay, plus minus 4ab, फिर से वही x square plus minus 2ax plus minus a square. ओके, तो हमें कंसिडर करना क्या है, सिर्फ ये दो साइंस, whether the coefficient of y and coefficient of x square are positive or negative. किस लिए, जो हमने कर्व देखे थे पैराबोला के, अगर पैराबोला का शेप लाइक दिस, इस तरह का है या इस तरह का है, अगर इस तरह का शेप रहेगा तो उस पैराबोला का इक्वेशन में एक्स स्क्वायर का कोऑर्डिनेट और कोएफिशिएंट, सॉरी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा फॉर बोथ दिस। और हम अगर इसे ज्वाइन करते हैं तो अगेन फिर से हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, राइट, ऐसा। सो यू डोंट कंफ्यूज इट हियर लाइक दिस। तो यहाँ पे इस पूरे पोर्शन में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इन दिस क्वाड्रेंट एंड दिस क्वाड्रेंट इज इन बोथ दिस, और यहाँ पे पॉजिटिव लाइक दिस। अब हमें ढूंढना है कि हमारा जो mx का मतलब बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन है, dy by dx हमें पता है, ddx ऑफ mx इज shear force। अब हमें देखना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ shear force मतलब d square y by dx square ऑफ mx, राइट। तो हमें उस इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर। तो उस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो रहेगा पॉजिटिव या नेगेटिव, उस हिसाब से हम ये डिसाइड करेंगे कि कर्व का शेप लाइक दिस ऐसे रहेगा या ऐसा रहेगा या ऐसा या ऐसा। लेट अस मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले अभी जैसे हमने शियर फोर्स का इक्वेशन निकाला था, वैसे बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकाल लेते इसी डायग्राम के लिए, है ना। P क्या रहेगा, मोमेंट एट x, let us take x section near free end and look at this side। क्या है यहाँ पे, सिर्फ P है, and what is creating it, ये हॉगिंग क्रिएट करेगा, लाइक इस तरह से बेंडिंग होगा उसका, हॉगिंग क्रिएट करेगा, इसलिए नेगेटिव साइन देंगे। P फोर्स एंड मोमेंट पता है, ये फोर्स इनटू डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज x। ओके, ये सेक्शन से फ्री एंड तक का डिस्टेंस x है, और कंप्लीट डिस्टेंस क्या है, L है, कैपिटल L। ओके, यहाँ पे जो है एट द एंड x इज इक्वल टू L है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, सो माइनस p इंटू डिस्टेंस x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। नाउ फॉर दिस इक्वेशन वी हैव टू ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। जैसे कि हमने देखा पहले स्लाइड में, यहाँ पे ये शेयर फोर्स डायग्राम निकाल लिए है, और हमें इस mx का इक्वेशन मिल गया माइनस p इंटू एक्स। नाउ वी विल ड्रॉ दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। हमने देखा यहाँ पे कि dy by dx इज नेगेटिव, मतलब स्लोप ऑफ दिस mx डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे ढूंढ लिया, अब नेगेटिव मिला। और दूसरी कंडीशन है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स। किसके लिए, हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है ना, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अगर हमारे इक्वेशन में एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिर्फ डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि हमारे इस इक्वेशन में एक्स
कोई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही नहीं है, एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, लेट अस से इट इज 0 है। सो हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारी शेयर फोर्स डायग्राम है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है पॉजिटिव, और ये शेयर फोर्स डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए, इफ आई विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ऐसे अगर मैं आगे आगे बढ़ते जा रहा हूँ तो क्या कोई बढ़ोतरी या कमी हो रही है शेयर फोर्स में? नो। दैट मीन्स अगर ये ऐसी होती तो व्हाट वी हैव टोल्ड कि शेयर फोर्स कम होता जा रहा है। अगर ये ऐसी होती डायग्राम तो हम कहते हैं कि शेयर फोर्स बढ़ रहा है, बट यहाँ पे ना तो घट रहा है ना ही बढ़ रहा है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम इज 0, dy/dx इज 0। इन दैट केस यहाँ पे ना तो पॉजिटिव आएगा ना ही नेगेटिव आएगा। ओके, d²y/dx², मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो 0 है। Here I can write like 0x²। इसका मतलब ये पैराबोला का इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन अगर आप कंपेयर करके देखिए तो इट इज सिमिलरली लाइक y = mx + c, है ना। तो मतलब हमारा जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगी वो स्ट्रेट लाइन रहेगी, राइट। दैट इट विल नॉट बी ए पैराबोलिक कर्व। पैराबोलिक कर्व का भी मैं एक करवाऊंगा एग्जांपल इसके बाद, डोंट वरी। सो अभी हमें यहाँ पता चला है कि ये स्ट्रेट लाइन है। अब हम पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशंस पे, बाउंड्री कंडीशन मतलब एट x = 0 एंड एट x = l, ये लेट अस से यहाँ पे x = l है एंड x = यहाँ पे 0 है ना। If we will put 0 here, what we will get? Value at left end 0 and at right end अगर x की वैल्यू l पुट करते हैं तो p × l, मतलब यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है और यहाँ पे समथिंग ml है, दैट इज -pl। तो चलो ड्रॉ करते हैं उसे। यहाँ पे 0 starting from this point and here it is -pl। let us draw negative। -pl है मतलब ऐसे नीचे नेगेटिव y डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पे। और हमने देखा कि स्लोप यहाँ पे जो है ऐसा पैराबोला ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगी, हमने फाइंड किया यहाँ से एज x² इज 0, coefficient of x² is 0, coefficient of x² is 0, that's why rate of change of change of y is, that means rate of change of shear force diagram is 0। मतलब इसका जो रेट ऑफ चेंज है मतलब यहाँ से यहाँ किस रेट से चेंज हो रहा है, तो 0 चेंज हो रहा है। एज इट इज कांस्टेंट है, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप भी ना पैराबोला की तरह नहीं रहेगा, एक स्ट्रेट लाइन रहेगी। ओके, ये आपको और क्लियर होगा जब यहाँ पे आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। मैं तुरंत अभी करवाता हूँ वो भी एग्जांपल, ये आप कंफ्यूज मत होइए, जस्ट ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल ली, सॉरी shear force diagram will be a straight line like this, सॉरी इधर से लेते हैं ये वाली। ओके, ऐसी एंड व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू क्या है इसकी -p × l, ये बन गई आपकी
बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -PL वैल्यू। अभी शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पे ये शेयर फोर्स जो है आइदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहेगा। अब ये सब कुछ भूल जाओ, बस हम शेयर फोर्स के आगे की प्रोसीजर देखेंगे। आपको पहले रिएक्शन फोर्सेस कैसे निकालने हैं, देन हाउ टू फाइंड दिस shear force equation and bending moment equation। यहाँ तक I assume that you are clear, क्योंकि ये सारी चीजें एक साथ जब हम डिस्कस करते हैं तो वो कंफ्यूजन होने लगता है। तो अभी सिर्फ हम एक shear force डायग्राम कंसिडर करेंगे और उसके लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा। ओके, लेट अस से ये है y, ये है x, और इसी पे कहीं पे हमारा है ये ऐसा एक शेयर फोर्स डायग्राम। ओके, इस तरह से ये बनी हमारी Vx। ओके, दिस इज पॉजिटिव। इसको हटा देते हैं अभी। व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सिस Vx on y direction, positive y direction। दिस इज Vx, दैट मीन्स shear force। ये पॉजिटिव वैल्यू आई है हमारी। ओके, नो यू कैन कंसिडर, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, है ना, लेट अस से हियर इज सम वैल्यू, लेट अस से 2। यहाँ पे आगे जाऊंगा तो यहाँ पे 3, 4, 5 like that we are getting increasing value। So what can I say? dx of Vx, dx of Vx is nothing but positive, है ना, पॉजिटिव, because it is increasing like this। और हमारा और एक कंसर्न क्या है कि हमें चाहिए dx ऑफ Vx की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। Vx आपको पता है इज नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ mx। ओके, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर ऑफ mx बाय dx स्क्वायर। ओके, अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मुझे ये वैल्यू फिर से क्या मिल रही है, रेट ऑफ, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम। शेयर फोर्स डायग्राम का चेंज कैसा हो रहा है, पॉजिटिव है, रेट ऑफ चेंज कैसा है, पॉजिटिव है ना। सो आई कैन से दैट, इसको मैं डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे वी एक्स है, और जो हम नई डायग्राम निकालेंगे वहाँ पे एम एक्स रहेगा वाई एक्सिस पे। सो डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर पॉजिटिव आया, और अकॉर्डिंग टू आवर दिस फिगर ऐसा अगर शेप है तो यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर क्या होता है, निगेटिव होता है। यहाँ पे भी इस पूरे अपर हाफ के लिए, और यहाँ पे पॉजिटिव होता है। ये मैं वैल्यूज किसके लिए लिख रहा हूँ, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, है ना। हमने देखा था ना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वगैरह वगैरह, वो वहां से। अब मुझे फाइंड करना है कि mx, ये जो mx की डायग्राम है, मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, उसका स्लोप कैसा रहेगा, या स्ट्रेट लाइन रहेगी या पैराबोलिक कर्व रहेगा, अपार्ट फ्रॉम दिस 4 क्वाड्रेंट्स। किस क्वाड्रेंट वाला शेप हम लेंगे, ये वाला या ये वाला, ये
इन दोनों में से। सबसे पहले तो हमें स्लोप फाइंड कर लेना है। स्लोप मतलब mx dx ऑफ mx क्या है, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब vx पॉजिटिव है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमारा ये, मैं इसको लिख ही देता हूँ, हमारी mx की वैल्यू क्या आने वाली है, ये आने वाली है mx की वैल्यू, है ना, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3। अगर ये नीचे होती है ऐसे तो नेगेटिव होती, तो एक तय हो गया कि स्लोप जो है इसका स्लोप पॉजिटिव है। अब हमें ये देखना है कि मैं dy बाई dx की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे, ये जो है डी स्क्वायर वाई बाई dx की थी, यहाँ पे रहेगी पॉजिटिव, यहाँ पे dy बाई dx रहेगा नेगेटिव, और ये जो है यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ मैं, यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर will be negative. That means these both values are negative in the first quadrant. यहाँ पे ये जो पहला वाला हम कंसिडर कर रहे हैं, यहाँ पे dy by dx भी नेगेटिव है एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स भी नेगेटिव, लेकिन हमारे केस में क्या है, dy by dx पॉजिटिव है, ये कंडीशन यहाँ पे, राइट, एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, मतलब यहाँ पे तो dy by dx का जो स्क्वायर है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव वो नेगेटिव आ रहा है, हमें ये इन दोनों में से कोई तो भी चाहिए, है ना, इन दोनों में से। तो देखिए यहाँ पे dy बाई dx, अगर मैं dy बाई dx मतलब इसका स्लोप, ये मैं इसको टेंजेंट निकाल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइए, ये जो टेंजेंट मैं यहाँ से निकालूंगा इसका स्लोप कैसा रहेगा, m पॉजिटिव, राइट, है ना, पॉजिटिव। तो यहाँ पे स्लोप भी पॉजिटिव और रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स भी पॉजिटिव, तो ये वाली कंडीशन हमारी जो है सेटिस्फाई हो रही है। हियर देखिए ये टेंजेंट, इसका जो है स्लोप भी पॉजिटिव है, और अगर हम पैराबोला, इस पैराबोला का इक्वेशन देखेंगे तो उस पैराबोला के इक्वेशन में हमें क्या मिल रहा है कि ये डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर की वैल्यू भी पॉजिटिव मिलेगी, मतलब हमारा कुछ इस तरीके का ये रहेगा, बेंडिंग मोमेंट आएगा। ओके, ये हमने कंसिडर किया हुआ एग्जांपल है, तो थोड़ा इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। अपना लेटेस्ट से कि mx का इक्वेशन हमने फाइंड कर लिया है, अज्यूम करते हैं कि समथिंग mx px स्क्वायर माइनस x, इस तरह से कुछ। अब देखना है हमें कि स्लोप भी पॉजिटिव आना चाहिए और रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स डायग्राम वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू डालता हूँ तो पहले तो ये 0 आ जाएगा, राइट, x is equal to 0, and at x is equal to L, what will be the value, PL square by minus PL square minus L square, कुछ इस तरह से, राइट, by putting values of L, let us say जो भी है, and value of P, आपको कुछ तो भी यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी न्यूटन मीटर में, तो हमें ये वाला शेप वहाँ पे निकालना रहेगा। तो समथिंग लाइक दैट, इस तरह से कुछ डायग्राम